Assalamu alaikum students, this is Kashif Hussain, your English teacher from Midesha Foundation Academy. I hope you all are doing well and staying safe at your home. In this pandemic situation, don't forget to use sanitizer, wearing mask and keep making social distancing. So guys, I hope in the last video we discussed chapter number 1 and today in this video I'm gonna discuss with you a new chapter, that is chapter number 2, free time, which is given on page number 16. So first of all, I'll discuss with you the difficult words, then vocabulary, and at last I will share the explanation of this chapter with you. So let's begin this interesting chapter which is given on page number 16. Alright, let's students start our new chapter, chapter number 2, free time. First of all, you need to open your book and underline the difficult words which I am going to share with you. So I would like you to repeat after me those words which are written on the board. So let's start. Our first word is Roman. Next word is eventually. Third one is revived. Number 4, Athens. Number 5, Greek. Number 6, traditions. Number 7, relay. Next one is ceremony. Another one is interlocking. Number 10 is enormous. 11, competitors. Number 12 is estimated. 13, last but not least, wrestling. I hope you have understood the pronunciation of these difficult words and keep pronouncing these words so that you can be able to understand the words properly. Okay students, now we will learn some new vocabularies from this chapter and I hope you will learn these vocabularies and try to use it in your sentences. So let's begin. Our first word is honor. Honor का मतलब होता है high respect, बहुत ज़्यादा इज्जत. Revive. Revive का मतलब होता है restore to life, ज़िंदगी में वापस आना या फिर उसको दोबारा ज़िंदा करना. मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ये revive का वर्ड इस चैप्टर में क्यों इस्तेमाल हुआ है और इसकी मीनिंग क्या है. Now next word is relay. Relay का मतलब होता है group of people engaged in a task. Okay, for example, कुछ लोगों के ग्रुप को अगर कोई काम असाइन किया जाए for a certain period of time, so we use the word relay. Okay, next word is enormous. Enormous का मतलब होता है very large in size, बहुत बड़ा. Okay, another word is estimate. Estimate का मतलब होता है rough calculation, like अंदाज़ा लगाना या तखमीना करना. Another word is compete. Compete का मतलब होता है take part in a contest, यानी किसी चीज़ में हिस्सा लेना, किसी कंपटीशन में, किसी फंक्शन में, किसी इवेंट में compete करना. It means take part in a contest. Another one is light it in. Light it in का मतलब होता है burning, जलाना. Another word is eventually. Eventually का मतलब होता है in the end, आखिर में. I hope कि आपको ये vocabulary समझ आ गई होंगी. इसके अलावा मैंने कुछ vocabularies की मीनिंग ब्लैंक छोड़ दी है in your worksheet. I hope you will use a dictionary and try to find out the meaning of those words. Okay students, अब मैं आपके साथ इस पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूँगा. इस चैप्टर में हमें कुछ चीज़ों के बारे में ज़रूर जानना है कि ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुआ और कौन सी कौम थी उस वक्त, उसके बाद उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई और आज ओलंपिक गेम्स को किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है. सो पहले हम डिस्कस करेंगे द हिस्ट्री ऑफ द ओलंपिक्स. द हिस्ट्री ऑफ द ओलंपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट वाज स्टार्टेड इन 770 BC. ठीक है, ये बहुत पुराना गेम है जो कि आज तक ज़िंदा है और आज तक लोग ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और लोग इसको इंजॉय करते हैं. ओके अच्छा, द ओलंपिक्स वर ऑफ ग्रेट रिलीजियस इंपॉर्टेंस इन कंबाइंड स्पोर्टिंग इवेंट्स विद सेरेमनीज इन ऑनर ऑफ द ग्रीक गॉड ज़्यूस. बेसिकली ये जो गेम ऑर्गेनाइज किया था 770 BC में वो थे ग्रीक्स.
ग्रीक्स आपको पता है एक ऐसी कौम है जो कि बहुत कदीम ज़माने से ग्रीस एक जगह है साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट यूरोप में है, तो वहाँ पर ये कौम आबाद थी। तो उसने ये ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट किया था, दुनिया में ऑर्गेनाइज़ किया था। और उसके बाद ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद ये था कि जो उनके गॉड ज़्यूस थे, वहाँ पर जब सेलिब्रेशन की जाती थी अपने गॉड के लिए, तो वहाँ पर इस तरह के गेम्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते थे। Next thing is, when the ruins of ancient Olympia were discovered in the middle of the 19th century, the Olympic Games were revived. अच्छा, ग्रीक्स के बाद जब रोमन्स का एरा आया, तो रोमन्स के एरा में या रोमन्स के दौर में इस गेम को ख़ासी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई और रफ्ता रफ्ता इस गेम को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन बाद में काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी सदियों के बाद, मिड ऑफ 19th सेंचुरी को इस गेम को दोबारा रिवाइव करवाया गया। रिमेंबर आई डिस्कस दिस वर्ड विथ यू, रिवाइव। रिवाइव का मतलब होता है रीस्टोर इन लाइफ, दोबारा ज़िंदा होना। तो ग्रीक्स के दौर में ये गेम ज़िंदा था, उसके बाद रोमन्स का एरा आया, ये गेम ख़त्म हो गया और दोबारा जब मिड ऑफ 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो फिर ये गेम दोबारा से दुनिया में खेले जाने लगा। ओके, अच्छा, उस टाइम 14 कंट्रीज़ टुक पार्ट इन द टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स वाज लेस देन 250। उस टाइम सिर्फ 14 ममालिक ने इस गेम में पार्टिसिपेट किया था और जिसमें ऑल टुगेदर 250 प्लेयर्स मौजूद थे। दैट मीन्स 250 प्लेयर्स वर participated in the game when it was revived again in the mid 19th century. Okay, the second Olympic Games held in Paris in 1900, women were allowed to compete for the first time. Now this is something very important for you कि Olympic Games हर 4 साल बाद खेला जाता है। हर साल ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज नहीं होते दुनिया में। ओलंपिक गेम का एक टाइम पीरियड है, यानी कि अगर 1896 में फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 4 साल के बाद 1900 को दोबारा ऑर्गेनाइज किया। अच्छा, फ़र्स्ट टाइम जब 1896 में गेम प्ले किया गया तो उस टाइम विमेन पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, बट व्हेन द ओलंपिक गेम्स वर ऑर्गेनाइज सेकेंड टाइम द विमेन पार्टिसिपेटेड एट द टाइम। नाउ अनदर थिंग इज़ ओलंपिक ट्रेडिशंस। अच्छा, आपको पता है कि हर गेम की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। एज यू नो दैट इन क्रिकेट मैचेस व्हेन द गेम स्टार्ट्स, सो दे सिंग नेशनल एंथम, उससे टॉस होता है और उस पर कुछ ऐसी ट्रेडिशंस हैं जो इसमें लाजमी फॉलो की जाती हैं। अच्छा, ओलंपिक गेम्स में क्या ट्रेडिशन है ये देखते हैं हम। ओलंपिक गेम्स, वन ऑफ द बेस्ट नोन ट्रेडिशंस, द ओलंपिक टॉर्च। यहाँ पर ओलंपिक टॉर्च बहुत अहमियत की हामिल है। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो ये है कि जब ओलंपिक गेम स्टार्ट होता है तो उस टाइम एक ओलंपिक टॉर्च जलाई जाती है, बर्न की जाती है, ठीक है। और वो ओलंपिक टॉर्च उस वक्त तक जलती रहती है जब तक ओलंपिक गेम पूरा ख़त्म नहीं हो जाता। और जब ये ओलंपिक गेम स्टार्ट होता है तो वो टॉर्च जलाई जाती है और हर टीम उसको 1 बाय 1 ले करके पूरे स्टेडियम में मूव करती है। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तानी टीम है तो उसका एक प्लेयर उस टॉर्च को लेकर कुछ दूर भागता है, उसके बाद इंडियंस और श्रीलंकन्स, यूके, यूएसए, जहाँ जहाँ जो कंट्रीज़ इस गेम में पार्टिसिपेट करती हैं वो इस टॉर्च को लेके कुछ दूर भागती हैं और दूसरे मुल्क के प्लेयर को दे देती हैं। So that is an interesting thing you need to remember, okay? The famous Olympic symbol, 5 interlocking rings. Now I'm drawing a diagram here. I'm not good at drawing, but I'm trying to make you understand by drawing this. This is the symbol of Olympic Games, which has 5 interlocking rings. अच्छा, इसमें 5 interlocking rings क्या represent करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि हर सिंबल के पीछे कुछ ना कुछ मैसेज होता है। लाइक हमारा जो फ्लैग है ग्रीन एंड वाइट कलर का, वो हमें मोहब्बत और अमन का पैगाम देता है, ठीक है। ग्रीन साइड हमें बताता है इट्स अ मुस्लिम कंट्री और वाइट साइड हमें बताती है कि इट्स अ पीसफुल कंट्री। यहाँ पर ये हमें क्या मैसेज देता है कि 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स मीन्स कि ऑल कंट्रीज आर यूनाइटेड, सारी कंट्रीज मुत्तहिद हैं। और ये 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स वो 5 कलर्स के होते हैं जो कि हर फ्लैग कलर्स में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो कलर्स हैं ये तमाम दुनिया की जितने भी ममालिक हैं उनके फ्लैग से ये कलर लिया गया है और 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स बनाए गए हैं, ठीक है। ओके, नाउ दिस फ्लैग इज यूज्ड व्हेन द Olympic Games started, and still this flag is used in all over the world whenever the Olympic Games are organized.
आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा और जो इसकी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इट इज़ इंजॉयबल फॉर यू। अच्छा, ये बातें तो हम हिस्ट्री में डिस्कस कर रहे थे, अब हम डिस्कस करेंगे कि ओलंपिक गेम्स आज कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है और आज कैसे इसको पूरी दुनिया में खेला जा रहा है। ओके, द ओलंपिक गेम्स टुडे आर एन इनॉर्मस इवेंट विद मोर देन 10,000 कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम ओवर 200 डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, I told you one thing, when Olympic Games organized back in mid of the 19th century, at that time only 250 players participated. लेकिन आज जब ओलंपिक गेम्स दुनिया भर में खेला जाता है तो वहाँ पर more than 10,000 कॉम्पिटिटर्स इस पे पार्टिसिपेट करते हैं, यानी 10,000 कॉम्पिटिटर्स, 10,000 प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पहले इसमें सिर्फ कुछ ममालिक पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन आज 200 से ज़्यादा ममालिक इस गेम में हिस्सा लेते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और थाईलैंड, यूके, यूएसए, बहुत सारे ममालिक इसमें लाजमी पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, और जो इस गेम को देखने वालों की तादाद है वो 4 बिलियन से अबव है, यानी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये पॉपुलर गेम है कि यहाँ जब ये गेम लाइव दिखाया जाता है स्पोर्ट्स चैनल पर, सो एट दैट टाइम जो व्यूवर्स की तादाद होती है वो 4 बिलियन से भी ज़्यादा होती है। अच्छा, पाकिस्तान एट द ओलंपिक गेम्स, पाकिस्तान भी इस गेम में हिस्सा लेता है। पाकिस्तान फर्स्ट पार्टिसिपेटेड एट द ओलंपिक्स 1 year आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948 इन लंदन। जब 1948 में लंदन में ये गेम ऑर्गेनाइज हुआ तो उस टाइम पाकिस्तान ने सबसे पहली बार इस गेम में पार्टिसिपेट किया, यानी 47 में Pakistan got independence, and in 1948, right after 1 year of independence, Pakistan participated in Olympic Games, right? अच्छा, पाकिस्तान ने बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हासिल की हैं, which I would like you to read it by yourself, और ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान have won different medals, some gold medals, some silver medals, some bronze medal. So you need to get those information from the last paragraph of this chapter. आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आई हैव गिवन यू सम क्वेश्चंस, सम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आफ्टर vocabulary part in your worksheet. I would like you to read this chapter by your heart again and again so that you can solve those questions. Okay, at last I would like to give you one comment regarding your worksheet. Try to do your work neat and clean, because in the last worksheet I found some you can say some improper work which I don't want you to send me back again. So till then, in the next video we will discuss the language part of this chapter, and I would like you to read this chapter by yourself. I hope you have enjoyed this lecture and understood the fundamentals and facts of Olympic Games. Till next video, take care. See you in the next video. Thank you very much. Allah Hafiz.